everybody, so today we are going to begin with the lesson number 3 of your class 2 computer, that is parts of a computer. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about monitor. Next one we are going to study about CPU, other parts of the computer, keyboard and the mouse. So our body is made up of different parts such as head, hands, legs, face, heart, ब्रेन, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा. हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट से बनी हुई होती है, जैसे हार्ट हो गया, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, किडनीज हो गई, लंग्स हो गए, बहुत सारे पार्ट्स हैं. सो लाइक दिस ईच पार्ट परफॉर्म डिफरेंट वर्क. हर पार्ट एक अलग अलग वर्क करता है. इन सेम वे कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स टू. इसकी तरह ही कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. These parts all together make the computer function as a whole and form the computer system. तो ये जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को वर्क करवाते हैं, एक होल की तरह मतलब एक साथ वर्क करते हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. नाउ अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. एक कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है व्हिच हैज 4 मेन पार्ट्स. जिसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड द माउस. So let us learn about the 4 main parts of a computer. So first one is monitor. So a monitor looks like a television, that is TV screen. A monitor television की तरह लगता है, TV screen की तरह लगता है. So it shows the text typed in by the user and displays the output which is known as soft copy. So ये display करता है जो भी हम text type करते हैं उसको अपनी monitor पे display करता है और किसकी तरह show करता है? हमारे output को soft copy की तरह. So it is also called VDU, that is Visual Display Unit. इसको हम VDU भी कहते हैं, Visual Display Unit. Now let's talk about keyboard. A keyboard is used to enter data in a computer as input. एक कीज किस लिए यूज होता है? कीज जो होती है इसके थ्रू हम एंटर करते हैं अपने डेटा अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं. So it has many buttons called keys. इसमें बहुत सारी बटन्स होते हैं उसको हम कीज कहते हैं. It is used to type letters, words, numbers and special symbols. किस लिए यूज होते हैं? टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, लेटर्स को, नंबर्स को, वर्ड्स को, स्पेशल सिंबल्स को टाइप करने के लिए यूज होती हैं. Now let's talk about a standard keyboard has 104 keys. एक standard keyboard में क्या होता है? 104 keys होती हैं which are organized according to their functions. वो अपने functions के accordingly organized होती हैं. Now CPU is the most important part of a computer. जो एक CPU होता है सबसे ज्यादा important part होता है हमारे कंप्यूटर का. It is also known as the brain of a computer. So the full form of CPU is the central processing unit. Full form क्या होती है CPU की? Central processing unit होती है. It is called the brain of a computer. इसको हम brain of a computer भी कहते हैं. It controls all the activities of our computer. ये सारी activities control करके रखता है हमारे कंप्यूटर की. It has large memory which helps us to remember things. इसकी बहुत सारी मेमोरी होती है जिससे ये चीजों को रिमेम्बर करके रखता है. The part of computer are connected to CPU by the wire. जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो CPU से किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. Now let's talk about mouse. A computer mouse has 2 or more buttons on it. दो बटन होते हैं या दो से ज्यादा बटन होते हैं कंप्यूटर के माउस पे. So it is called a pointing device. इसको हम क्या कहते हैं? Pointing device भी कहते हैं and can be used for selecting, moving and pointing. तो किस लिए यूज होता है? सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, पॉइंटिंग करने के लिए किसी भी आइटम को that can be seen on the monitor. जिसको हम मॉनिटर पे देख सकते हैं. So it help us to play games and draw pictures. किसमें हेल्प करता है? गेम्स खेलने में, पिक्चर्स को ड्रॉ करने में हेल्प करता है. When you move the mouse, जब आप मूव करते हो माउस को, a pointer also moves on the monitor. जो एक पॉइंटर होता है वो भी मूव करता है आपके मॉनिटर पे. Other parts of a computer. Apart from the 4 main parts, there are some other parts of a computer. बहुत other parts भी होते हैं कंप्यूटर के which are used to perform different functions. जो बहुत अलग अलग functions perform करने में यूज होते हैं. Let's learn about them. First one is printer. A printer used to print the text or pictures on papers. ये टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए यूज होता है, पिक्चर्स प्रिंट करने के लिए यूज होता है पेपर पे. सो प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. जो प्रिंटेड कॉपी होती है, जो आपका आउटपुट होता है प्रिंटेड कॉपी में, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं. सो अ प्रिंटर कैन बी यूज्ड टू प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्स. इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट निकाल सकते हैं, इसमें से हम कलर प्रिंट्स भी निकाल सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. 3 तरीके के प्रिंटर्स होते हैं. First one is dot matrix printer, second one is laser printer and the third one is
inkjet printer. Now microphone. A microphone is used to record a voice and different sounds into the computer. Microphone किस लिए यूज होता है? रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस, डिफरेंट साउंड्स हमारे कंप्यूटर में. इट इज एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस होता है विच इज यूज टू एंटर डेटा इन अ कंप्यूटर. जो किस लिए यूज होता है? एंटर करने के लिए डेटा हमारे कंप्यूटर में इन फॉर्म ऑफ साउंड या वॉइस या साउंड की फॉर्म में डेटा एंटर कर सकते हैं. इट ऑल्सो अलाउज टू टॉक विद अदर पीपल यूजिंग इंटरनेट. ये हेल्प करता है बातें करने में इंटरनेट के थ्रू और पीपल से. नाउ स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. स्पीकर्स एंड हेडफोन्स हेल्प अस टू लिसन म्यूजिक. ये किसमें हेल्प करते हैं? म्यूजिक को सुनने में हेल्प करते हैं. स्टोर्ड होता है जो हमारे कंप्यूटर में. दे ऑल्सो अलाउ अस टू लिसन टू अदर साउंड इफेक्ट्स सच एज साउंड इन मूवीज एंड गेम्स. ये और भी साउंड्स और इफेक्ट्स को सुनने में हेल्प करता है जो हमारी मूवीज में होती है, गेम्स में होती है. दे आर कनेक्टेड टू सीपीयू विद अ केबल. ये किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? सीपीयू के थ्रू कनेक्टेड होता है केबल के. नाउ सीडी. CD stands for compact disc. A CD is round in shape and can store a lot of data. ये round shape में होती है और बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकती है, like pen drives. So computer have a CD drive that plays a CD. इसमें क्या होती है? कंप्यूटर में CD drive होती है जिसको आप CD इंसर्ट करते हैं जो CD को प्ले करती है. So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.